Assalamu alaikum to everyone. Today I am going to discuss carbohydrates. So let us get started. Carbohydrates are the most abundant organic molecules. Or we can say these are also called the macrobiomolecules. Macrobiomolecules. Because they are present in large quantity, present in large amount. Carbohydrates are actually made up of carbon, hydrogen and oxygen. And the general formula of carbohydrate is CxH2O का whole y, where x and y are integers whose value is x and y is equivalent to 1, 2, 3 and so on. इसके बाद हम definition of carbohydrate देखेंगे. Definition of carbohydrate. Carbohydrates are defined as polyhydroxy aldehydes, or these are the polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. अब polyhydroxyaldehyde का मतलब क्या है? A chemical compound which contains more hydroxyl groups. मतलब जिसमें मैक्सिमम OH ग्रुप्स हो, OH ग्रुप्स हो. उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल हम इसकी लेंगे ग्लूकोज की. इसका हम ग्लूकोज लेंगे यहाँ पे. इसका हम ओपन या जिसको हम लीनियर चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करेंगे ग्लूकोज का, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6. ओपन स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे कार्बन का, ये ग्लूकोज का. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, एंड दिस ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसके बाद हम इसमें aldehyde ग्रुप्स लेंगे. This is the open structure of, we can say this is the open or linear structure of glucose. This is the first carbon, second, third, fourth, fifth and sixth. पहला जो कार्बन है वहाँ पे हमें aldehyde ग्रुप है, aldehyde ग्रुप. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम अल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, अल्डोहेक्सोज. इट कंटेन्स many हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर हम फ्रिक्टोज की एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. फ्रिक्टोज की बात करेंगे. फ्रिक्टोज, उसका हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे. दिस इज़ द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रिक्टोज. This is the open structure. This also contains many hydroxyl groups, so it is a polyhydroxyaldehyde और कीटोन. यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमें कीटोनिक ग्रुप है. फ्रिक्टोज में हमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोनिक ग्रुप होता है, जो कि कार्बन नंबर 2 पे होता है. और यहाँ पे जो अल्डेहाइड ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, वो फर्स्ट कार्बन पे लाई करता है. इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. they are grouped into two. मतलब इसकी क्लासिफिकेशन, they are divided into two classes. Number 1, on the basis of behavior, on hydrolysis. And second classification is on the basis of taste.
taste. This is a taste. On the basis of behavior on hydrolysis, carbohydrates are divided into three groups. Number one is monosaccharide. Monosaccharide. Number two is oligosaccharide. Oligosaccharide. Number third is the polysaccharide. What? Polysaccharide. And mono and the oligosaccharides are also called the simple sugars. What? They are also called the simple sugars. And the polysaccharide is also called the complex sugars. These are also called the complex sugars. And on the basis of taste, they are divided into, carbohydrates are divided into two groups. Number first is the sugars and number second is non-sugars. And sugars में लाई करता है, इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है? इसमें मोनोसेकेराइड आता है, मोनोसेकेराइड आता है एंड डाइसेकेराइड, या और जिसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड. And non-sugars are polysaccharides. Non-sugars are polysaccharides. So, you हमने देखा कि classification of carbohydrates. They are grouped into two classes. On the basis of behavior on hydrolysis, they have three types. Carbohydrates are three types. Number first is a monosaccharide. Number second is the oligosaccharide, which contains also disaccharide. Trisaccharide depends upon the unit, sugar unit. Trisaccharide, tetrasaccharide, etc. And third group is the polysaccharide. Monosaccharide and oligosaccharides are also called the simple sugars. What? They are also called as simple sugars. And polysaccharide is called the complex sugar. And on the basis of taste, they are divided into two types, sugars and non-sugars. Sugars में कौन कौन सा ग्रुप आता है? Monosaccharides and oligosaccharides. ये disaccharide भी होगा, trisaccharide, tetrasaccharide, depends upon the sugar unit. And non-sugar में polysaccharides आते हैं. Sorry, this includes polysaccharides. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे monosaccharide. What? Monosaccharide. अब हमने monosaccharide लिया, monosaccharide. अगर हम लिटरल मीनिंग ऑफ मोनोसेकेराइड की देखें, मोनो मीन्स सिंगल एंड सेकेराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकरोन means sugar. These are the sugars, these are the carbohydrates made up of single sugar unit. These are the carbohydrates made up of single sugar unit. General formula of monosaccharide is CXH2O का whole Y, where X is equivalent to Y and X is equivalent to Y and lies between 3 to 7. Or we can say these are the simple sugars. These are simple sugars which cannot hydrolyze into further simple sugar units. मतलब अगर हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस इट डू नॉट गिव एनी प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे सिंपल शुगर और कोई नहीं बनता है. सो ये थी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसके बाद हम ओपन चेन देखेंगे एंड क्लोजर चेन ऑफ दिस, एंड ओपन चेन एंड क्लोजर चेन. And first of all, we see the examples of monosaccharides are glucose, fructose. These are all the monosaccharides. अब हम देखेंगे इनका structure. Monosaccharides consists of only one sugar unit, which can't be hydrolyzed into further simple sugars. Glucose का हम structure बनाया, मैंने इससे पहले भी बनाया. Glucose का structure, this is the glucose. मैं यहाँ पे glucose बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the linear, or we can say open chain structure of glucose. What? This is the open chain structure of glucose. Open chain structure.
this is open chain structure of glucose. This is the open chain. This is the open chain structure of glucose. अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मतलब क्लोजर रिंग में, तो ये कैसे क्लोजर रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट होता है. ये जो कार्बन नंबर 5 है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. जो कार्बन नंबर 5 है ये कुछ बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ, तो हमें क्लोजर रिंग मिलती है. तो क्लोजर रिंग हम यहाँ पे बनाएंगे. दिस इज द क्लोजर रिंग ऑफ द ग्लूकोज. यहाँ पे ऑक्सीजन है. दिस इज द क्लोजर रिंग. यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH. यहाँ पे हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हमें यहाँ जाके हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा. दिस इज द क्लोजर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. मैं जो यहाँ पे बना रही हूँ OCH2OH. यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन. तो फर्स्ट जो फिफ्थ जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है यहाँ पे. तो हमें फर्स्ट कार्बन और दिस इज द फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ जब ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में, यहाँ ऑक्सीजन होता है इनके दरमियान, तो हमें क्लोजर रिंग मिलती है. दिस इज द क्लोजर रिंग ऑफ ग्लूकोज. दिस इज द क्लोजर रिंग ऑफ ग्लूकोज. क्लोजर रिंग ऑफ ग्लूकोज. इसके बाद हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं. मोनोसैकेराइड्स आर optically active. These are optically active means that they rotate the plane polarized light. They rotate plane polarized light into two directions. Number one is left rotation. Number second is the right rotation. लेफ्ट रोटेशन इज, देखते हैं क्या होता है लेफ्ट रोटेशन. एंड अगर हम देखेंगे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज द glyceraldehyde. This is simplest carbohydrate which contains one chiral carbon. Chiral carbon is that very carbon having four different groups. सो यहाँ पे अगर हम ग्लाइसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज द 3 कार्बन शुगर. यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH. दिस इज द कार्बन 1, सेकेंड एंड थर्ड. एंड ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को इनटू 2 डायरेक्शंस, राइट एंड लेफ्ट. सो वो हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में. दिस इज द OH, दिस इज CH2OH. मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है. यहाँ पे जो OH है इस साइड में, दिस इज ऑन OH ग्रुप होता है. जो इसमें OH ग्रुप है वो राइट साइड में है. OH ग्रुप हमारा राइट साइड में है, इसका OH राइट साइड और इसका OH लेफ्ट साइड में है. अगर हम इसका OH राइट साइड में है, दैट मीन इज कॉल्ड डी ग्लाइसल्डिहाइड. इसको कहते हैं डी ग्लिसराल्डिहाइड. और इसका जो ये OH है वो लेफ्ट में है. This is called glyceraldehyde, or we can say L sugar. इसको D sugar कहेंगे, इसको L sugar कहेंगे, इसको L sugar कहेंगे, D sugar, इसको L sugar, इस वाले को L sugar कहेंगे. If OH group is on right hand side, that is called the glyceraldehyde. And if OH is on left hand side, then it's called the L sugar, or we can say L glyceraldehyde. L means simply levorotatory and D means dextrorotatory. इसके बाद हम क्लोजर रिंग का क्लोजर रिंग अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इस वीडियो में. अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द एनोमर्स. एक्चुअली वी डिस्कस द एनोमर्स. Anomers are actually the cyclic ring structures, cyclic or closer ring structures. What they are? Cyclic and closer ring structures of monosaccharides. Cyclic or closer ring structures of monosaccharides. The alpha and beta are two cyclic structures.
स्ट्रक्चर्स। वही हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ अल्फा एंड बीटा को हम समझेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्लोजर रिंग, जो कि हमने इससे पहले भी देखा कि क्लोजर रिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की मैंने क्लोजर रिंग बनाई। सो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट वैलेंसी करूँ बाई एच एंड ओ एच, वैलेंसी कंप्लीट करूँगी। एच यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे CH2OH। दिस इज द 6th कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। अगर इस शुगर में या ग्लूकोज में जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, अगर जो OH अपोजिट साइड होगा, हमें सिर्फ कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ OH, if they are in opposite side then this is called the alpha glucose। अगर ये सेम साइड में होगा तो दिस इज कॉल्ड द बीटा, वो भी मैं बनाऊंगी वो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द बीटा। अगर ये सेम साइड में होंगे देन इज कॉल्ड द बीटा, इफ दे आर इन अपोजिट साइड देन इज कॉल्ड द अल्फा। बीटा ग्लूकोज, ये मैंने यहाँ पे लिखा है anomers are the cyclic structures of monosaccharides. What? The alpha and beta are two cyclic structure of glucose or monosaccharide. They differ from each other in the configuration only around carbon number 1. What? Carbon number 1, मतलब यहाँ पे कार्बन नंबर ये डिफर करते हैं कार्बन नंबर 1। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इसका भी है, इसका भी। यहाँ पे OH नीचे साइड है और इसका OH ऊपर साइड है। इफ दे आर इन सेम साइड, इफ द OH and OH of the carbon number 6 are in same side then is called the beta, if they are in opposite side then is called the alpha। यही मैंने लिखा है। if CH2OH at carbon number if CH2OH at carbon number 5 and OH at carbon number 1 are or on opposite side then is called the alpha, मतलब and if OH at carbon number 5, if OH at carbon number 5 and OH of carbon number 1 are in same direction or in same side then is called the beta anomer or beta glucose। यही था anomers, यही था closer और cyclic structure of monosaccharides। इसके बाद हम देखेंगे disaccharides। असल में ये oligosaccharides है, oligosaccharides में डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके डिफरेंट टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द शुगर यूनिट्स। इसमें आएगा डाइसैकेराइड भी, डाइसैकेराइड में इसी में आएगा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड इसी में आएगा। सो हम बात करेंगे यहाँ पे डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड literal meaning of disaccharide, di means 2 and saccharide is derived from the word saccharon which means sugar। These are made up of 2 sugar units। What? These are made up of 2 sugar units। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी है? हमारे पास मॉल्टोस है, हमारे पास लैक्टोस है, लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड, हमारे पास सक्रोस है जो कि मेन वन है, सक्रोस है। दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सक्रोस मैंने लिया, सक्रोस यहाँ पे सक्रोस है, जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन किया, दे गिव अस 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रिक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रिक्टोज। अब हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज एंड फ्रिक्टोज का, वही हम देखते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे मैंने क्लोजर रिंग आपको दिखाई, अब मैं सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाऊंगी, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कंसिडर करो ये ग्लूकोज है, बिकॉज आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है दिस इज द ग्लूकोज। असल में मैं यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज दिखाऊंगी। ग्लूकोज में क्या होता है कि एक ग्लूकोज लिया और दूसरा ग्लूकोज, ये मैं दिखाऊंगी यहाँ पे H and OH, और दूसरा मैं ग्लूकोज दूंगी। दूसरा मुझे फ्रैक्टोज लेना है, दिस इज द फ्रैक्टोज। उसका भी यहाँ पे फ्रैक्टोज इज अ 5 मेंबर रिंग, इसमें कार्बन जो होते हैं 5 होते हैं, CH2OH, यहाँ पे इसका OH होता है। इस वाले का H और O, इस OH यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। सो ये है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। ये मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, दिस इज द फ्रिक्टोज रिंग। सो ये है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो ये था, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे बनाया है। सक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज प्लस फ्रिक्टोज। सक्रोज का जो जनरल फॉर्मूला है C12H22O11। मैंने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज लिया एंड बीटा डी फ्रिक्टोज, सॉरी यहाँ पे बीटा डी फ्रिक्टोज है। जब इनकी रिएक्शन होती है हम यहाँ पे, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। वो कैसे बनता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे H, और जो हमारा फ्रिक्टोज होता है वहाँ से OH रिलीज होता है, वाटर निकलता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। व्हेन द glucose and fructose, when the two monosaccharide units combine together, they form a disaccharide which is called the sucrose. When this alpha D glucose and beta D fructose combine together, they form a, this is disaccharide, this is the sucrose, they form a sucrose. What they form? Sucrose, which is a disaccharide carbohydrate, and release water molecule and form these are linked together by the glycosidic bond. When two monosaccharides are combined together, they form a disaccharide. They are held together by glycosidic bond between carbon number 1 of alpha, this is the alpha D glucose, and carbon number C2 of carbon number 2 of beta D fructose. तो यही था डाइसैकेराइड। इसके बाद हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पॉलीसैकेराइड। इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। थैंक्स।